سلیم سچوانی صاحب، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا زاہد منصوری صاحب نے کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ سارے مسائل کا حل ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کرتے. جس دن ہم اپنے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں گے، دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں گے، مل بیٹھیں گے، تو معاملات سارے حل ہو جائیں گے. ایسے ہی قول و فعل میں تضاد ہوگا تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. فارم 47 کا مینڈیٹ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. اور جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ جو فارم 45 کا ہوتا ہے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. تو جن طاقتوں نے فارم 47 والوں کو بٹھایا اور اس کو استعمال کر رہی ہیں، تو تمام تر معاشی اور تمام تر جو بھی بحران پیدا ہو رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری ان کے اوپر بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں 2018 میں کیا ہوا تھا. 2018 میں یہ ہوا تھا کہ نا آپ کو 2 وزارتیں ملی تھی. بات سنیں، میں ایم کیو ایم جو ہے نا تقریباً 14 قومی اسمبلی سے جیت رہی تھی. ٹھیک ہے. اور تقریباً 28 حلقوں سے جیتی ہوئی تھی. اچھا. لیکن رات تک 1 بجے تک رزلٹ ایم کیو ایم کے حق میں تھے. اگلے دن رزلٹ چینج کر دیے گئے. اچھا، اس وقت فارم 45 چینج کیا گیا. اس کا بہت شور شرابہ ہوا کہ بھئی آر ڈی سسٹم کو بٹھا دیا گیا. رات تک جو رزلٹ آ رہے تھے وہ ایم کیو ایم پوری جیت رہی تھی، پورے کراچی سے، حیدرآباد سے. این وقت آر ڈی سسٹم کو بٹھا دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ 2018 کی جو بات کر رہے ہیں کہ 45 قوم نے بنا دیا گیا. پاکستانی قوم کو پہلی دفعہ معلوم پڑا ہے، پاکستانی قوم کو 2024 میں پہلی دفعہ معلوم پڑا ہے کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے اور فارم 47 کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے تو آج تک کبھی فارم 45 فارم 47 سرا ہی نہیں تھا. صرف آر ٹی ایس بیٹھ گیا یہی سنا تھا. رانا صاحب سے میں کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ فارم 47 یہ ہوتا ہے، فارم 47 یہ ہوتا ہے. جانی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ بجٹ میں یہ خاص طور پہ یہ پوائنٹ، کیونکہ یہ بہت ہی یہ دونوں پارٹیاں صرف لمبی لمبی باتیں کریں گے، بجٹ کے اوپر اپنے تبصرات کا اظہار کریں گے، اور آخر میں آپ دیکھیے گا کہ دونوں مل کے بجٹ کو پاس بھی کروا دیں گے. کیونکہ ان کو وطیر ہے، صرف ان کے ساتھ ملے ہوئے، ان کے ساتھ حصے دار ہیں. فارم 47 کے حصے دار ہیں یہ تینوں کی تینوں پارٹیاں. فارم 47 کے حصے دار ہیں تو ان کو فارم 47 کے حساب سے یہ کام کریں گی. عوام کے مفاد کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے، کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. اور یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکسز پہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ ٹیکسز میں آپ دیکھیں نا، فائلر اور نان فائلر دنیا میں پاکستان کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا کہ یہ فائلر ہے، دیتے ہیں، یہ فائلر ہے، نان فائلر ہے. اور آپ دیکھیں آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے یا 2 لاکھ روپے، اس میں سے آپ ٹیکس، انکم ٹیکس آپ کا یہ کارڈ لیتے ہیں. کارڈ لینے کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں تو آپ کوئی بھی چیز خریدنے جا رہی ہیں، ایک بھی چیز آپ کہیں سے کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کے اندر پھر دوبارہ آپ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے، چاہے ماچس کی ڈبیا ہو، چاہے تیل کا ہو، چاہے آپ ٹوٹل ٹیکس آپ ملائیں، کیلکولیٹ کریں کہ آپ نے جو ٹیکس بھرا ہے اس کے بعد کیا آپ کو اس کا ریفنڈ مل رہا ہے. اتنی سہولیات مل رہی ہیں اس ٹیکس کے حساب سے تو آپ کو زیرو نظر آئیں گی. کیونکہ آج تک آپ کے دور حکومت میں کچھ اس پہ کام ہوا تھا؟ دیکھیں دور حکومت جو تھا وہ یہ 70 سال اب پہ محیط دور حکومت نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا ہے تو وہ بالکل وہ اپریشیٹیبل ہے. 3.5 سالہ دور حکومت میں اندر جس حساب سے پاکستان کو لیا تھا، اس کے بعد میں نے آپ ہی کے پروگرام میں 1 نہیں 2 سے 3 مرتبہ حساب کر کے بتایا تھا، پاکستان کو پروفٹ میں چھوڑ کے گئی تھی پی ٹی آئی، نقصان میں نہیں چھوڑا تھا. پاکستان کے ایکسپورٹ ریکارڈ تر ایکسپورٹ میں تھی، پاکستان ڈیمز بنا رہا تھا. اور یہ حکومتیں جو بیٹھے ہوئے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، ڈیم بیچ رہے ہیں. اچھا، یہ پاکستان کا برو تھا ڈیم جو ہے وہ بیچنے کے پہ تلے ہوئے، جہاں سے 1 روپے 25 پیسے کی بجلی بن رہی ہے اس ڈیم کو ان لوگ نے فور سیل پہ لگا دیا ہے. یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے عوام میں اشتعال پیدا ہو اور عوام روڈوں پہ ہوں. کیونکہ عوام کا ایک تو مہنگی بجلی پہ کے جھٹکے دیے ہوئے، اوپر سے آپ نے لوڈ شیڈنگ کے جھٹکے دیے، اور قیمتیں آپ پوری کی پوری لے رہے ہو. چاہے بجلی بنے یا نہ بنے، عوام نے پیسے دینے اس بجلی کے، مگر پھر بھی عوام کو بجلی نہیں دی جا رہی ہے. سلیم صاحب، آپ کیونکہ اپوزیشن خاصا شور مچا رہی ہے، ہر چیز کو اپوز کر رہی ہے، بول رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ جو کہ بالکل عوام سے ریلیٹ کر رہی ہیں چیزیں، جو مہنگائی ہے یا بجلی کے بلز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں یا دوائیوں کی پہ ٹیکسز ہیں یا قیمتیں ہیں ان کی جو بڑھ جائیں گی، اب دوائیوں پہ ظاہر ہے ٹیکس لگے گا، قیمتیں ان کی ویسے ہی بڑھ جائیں گی، تو اس پہ آپ کوئی تحریک لا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں خالی دوائیوں پہ نہیں بڑھ رہا، یہ دودھ کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. بچے بھی پیتے ہیں، بڑے بھی پیتے ہیں، اور جو نارمل جو صحت عامہ کی چیز ہے، صحت عامہ کی چیزوں میں نارملی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان جیسے غریب ملک میں انہوں نے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. تو یہ جو جس طریقے سے ٹیکسز لگا رہے ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں ہم کل انشاءاللہ قوم خوشخبری سنے گی. کل کیا قوم خوشخبری سنے گی؟ آئی ایم ایف نے اپروو کر دیا اس چیز کی خوشخبری سنے. یہ کوئی خوشخبری کی بات ہے؟ قوم کو آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں بلکہ آئی ایم کے ساتھ مل کے، کیونکہ اس کے بعد یہ جو بھی پیسے آنے وہ واپس انہی کے اکاؤنٹوں میں جانے. آئی ایم ایف کے سے جو بھی پیسے ملنے وہ
बसरत दीगर मुताहद में ये वापस ही जाते हैं। अभी आप देखें चीनी का जो है एक्सपोर्ट करने के फिर प्लानिंग इनकी शुरू है। ये चीनी एक्सपोर्ट करेंगे, किसानों का टाइम आएगा फिर इंपोर्ट करके बैठ जाएंगे, किसानों को वही कीमतें नहीं देंगे, किसानों को जो है फिर वही किसानों का एहतसाल करेंगे। ये किसी भी मामले में आप देख लें, किसी भी शोबे में आप देख लें, आप देखें ना इसको कि मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा कि डेमो की तामीर तो दर के ना ये डेमो को भी बेचने पे तुले हुए हैं। अब आप बताओ वैसे किस चीज की भलाई की उम्मीद करेंगे? ना उनके लाने वालों से भलाई की उम्मीद है जो उनको लाके बिठाए, ना हमें इनसे उम्मीद है कि जो बैठे हुए मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहे हैं और आवाम का एहतसाल कर रहे हैं। सलीम साहब से बात कर लूं फिर आपसे करते हैं। ये लोग जो है ना सिवाय आवाम को परेशान करने के, मुल्क की मसनूआत को तबाह और बर्बाद करने के इन्होंने कोई इकदाम नहीं होते। आप देख लें हर्बल मेडिसिन के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया। इससे पहले पाकिस्तान की लोकल जो मशरूबात थी पाकोला और उसके ऊपर नवाज शरीफ दौर में इतना टैक्स लगा दिया गया था कि वो लोकल से मार्केट से गायब हो गई थी और आज भी सिर्फ डिस्पोजेबल की मद में मिलती है। ये एक तरह से उसकी कड़ी है एक सिलसिले की कि पाकिस्तान की मईशत को जो लोकल जो बिजनेसमैन है, जो लोकल जो चीजें चल रही हैं उसको भी बिठा दिया जाए, ख्वाह वो दवाइयों का मामला हो या किसी दूसरी प्रोडक्ट का मामला। जी बिल्कुल, ये देखना गंदम के किसानों को कोई भी सहूलत नहीं दी गई। उनको जो एक तयशुदा एग्रीमेंट था इनसे कि हम इतने में गंदम खरीदेंगे, उनको भी गंदम नहीं खरीदी गई। और इसके अलावा हिस्ट्री देख लें इनकी, जितने सालों से हुक्मरानी में हैं। आप अभी जो ये बिजली की बात कर रहे थे तो आपको पता पीटीआई ने बिजली को अगर लगाम ना दी होती बिजली वालों को तो आज पाकिस्तान डूब चुका होता। 10 खरब रुपए इन्होंने सिर्फ इनके अकाउंट से वसूली की है जो उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उसकी वसूली की। इसके अलावा जो बिजली के अंदर में जो उन्होंने डॉलर्स की मद में प्रॉफिट लेने का जो उन्होंने वतेरा अपनाया हुआ था तो उसको भी इन्होंने जो है एक कंट्रोल किया और उसको डॉलर की मद को 145 की हद तक लगाम कर दिया। अगर ये 145 की हद तक लगाम न की होती तो ये जो है आज इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको डॉलर में पेमेंट कर सकते और आज पाकिस्तान बैंकरप्सी में आ चुका होता और उसके बाद मजीद इतना इस हाल में होता कि पाकिस्तान के पास कोई वसाइल नहीं होते कि वो उससे निकलता। देखिए सबसे वही आईपीपी की ही बात कर रहा हूँ मैं। ये जो मामला जो है वो आईपीपी का ही है। ये 10 खरब जो वसूली हुई थी वो इन्हीं आईपीपी से हुई थी और ये आईपीपी हैं जो मुल्क के अंदर जो है ना एक क्या ऑक्टोपस की तरह इसने जकड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, एक ऑक्टोपस की तरह जकड़ा हुआ है। और जो बात है ना खरब की कहीं हुआ ही नहीं है ये तो। सर देखें इत्मीनान से देख ले, इसके बाद में आप बाद में मेरे से कहिएगा कि हुआ या नहीं हुआ। ये एक हकीकत है जो डॉक्यूमेंटेशन तो होगी ना, ऐसा तो कोई नहीं है कि बिल्कुल ठीक है। और जहां तक इनका ताल्लुक है ना कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ये सर्च करें, नहीं तो मैं इनको सर्च करके निकाल के दे दूंगा। और बेफजूल के अंदर में बगैर किसी उसके बीच में बात कर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं। फिर मैं भी इस तरह बात करना शुरू कर दूंगा तो वो बात जो है बात नहीं बनेगी, हम आपस में उलझे रहेंगे। राना साहब से भी बात करनी है जी। ये लोग जो हैं वो कौम के लिए है ही नहीं। आप हिस्ट्री देख लें, जब से ये लोग आए ऑपरेशन अभी जस्ट अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको क्या हक पहुंचता है कि वो कोई भी ऑपरेशन करें? ये खुद फॉर्म 47 के इनको लाने वाले भी गलत, ये भी गलत। इनको और अवाम किस तरह हिमायत मिलेगी इनको, ये आप बताएं। कोई भी सूबा इनको इस मामले में हिमायत नहीं करेगा क्योंकि ये नाजायज हुकूमत है और नाजायज हुकूमत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कहीं पे ऑपरेशन करे। और मैं पूछता हूँ ऑपरेशन कहाँ किया जाता है? जहाँ कोई खराबी होती है। तो सवाल मेरा ये है कि अगर वहां पे खराबी थी तो क्या हमारी एजेंसियां सिर्फ सोई हुई थी सत्तू पी के, कि उस वक्त उनको नजर नहीं आता वहां पे खराबी पैदा हो रही है? तो उस वक्त उन्होंने उसी खराबी को ठीक करने के लिए तो ये ऑपरेशन किया जा रहा है ना। पहले इंतजार किया जाता है, पहले इंतजार किया जाएगा सवात में लोग जमा हो जाएं, सवात में पहले जमा किए जाते हैं, फिर हमारी फौजियों को भेजा जाता है। हमारे फौजी क्या मुफ्त के हैं? हमारे फौजी क्या हमारे नहीं है कि उनको हम भरने के लिए भेजते हो? पहले इनको आप कार्रवाई नहीं करते हो जब वो जमा हो रहे होते? जब जमा हो चुके तब आप भेजते हो उनको कि जाओ अब जब लड़ो मरो। वहां से फिर आम आदमी मर रहा होता है इनके साथ में, बेगुनाह लोग साथ में मर रहे होते उस वक्त। जब वो बेगुनाह लोग मरते हैं तो वो भी उनकी भी दिलों में फौज के खिलाफ नफरत पैदा होती है, वो भी नफरत से निगाहों से देखते हैं और वो उनमें से बात तो इंतकामी कार्रवाई में भी आ जाते हैं इनके कि इन्होंने हमारे बंदे मारे, हम भी इनको मारेंगे। सलीम साहब ये इस तरह का जो कल्चर ये क्रिएट कर रहे हैं, ये कल्चर चेंज होना चाहिए। क्यों क्रिएट किया जा रहा है? बिहार से डॉलर मिल रहे हैं इस चीजों के, मुल्क में अदम इस्तेकाम के डॉलर ले रहे हैं, इनके अकाउंटों में बाहर डॉलर जमा हो रहे होते हैं।
पाकिस्तान में आतंक इस्तेकाम हो, उनके अकाउंट में डॉलर है, मुल्क की मादनियात लुटती रहे। जाहिर साहब, और आप मुल्क की इत्तेफाक करते हैं इस मादनियात बात से? मुल्क की मादनियात इससे भी नहीं मुल्क की इत्तेफाक करते। मादनियात जो लुट रही है, लेकिन 9 मई का जो वाक़या हुआ, accountability ना हो और उसके ऊपर कोई भी चीज ना आए। जी जाहिर साहब, ये 9 मई का वाक़या आपके सामने है कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किसने की? पीटीआई ने करी ना। वाक्य में भजन जो तो हुआ उसमें जो वो ना पूरी कौम को पता है तो कि वहाँ पे खवातीन के साथ 9 मई में क्या किया गया, बालों से पकड़ के घसीटा गया, टांगों से उठा के आप फेंका देखें गया। ना, 9 मई वाले दिन असल आपके जो लोग कितने गए थे वहाँ पे? कल्प्रिट्स है ना, ठीक है सलीम साहब, अब उनको बात कर लेना। अब देखिए 9 मई का जो वाक़या हुआ, देखें उसमें अच्छा। क्या हुआ कि फौज पे हमले किए गए, यानी कि मुल्की सालमियत पे हमला किया। पीटीवी पे हमले की रवायत किसने डाली? किस्तों के पास हथियार थे? पीटीआई डाली। कितने लोग हथियार लेके जा रहे थे कि फौज अब पे देखिए, हमला कर दिया गया? कोर कमांडर घर पे फुटबॉल घुस गए। भी शर्म नहीं आते, नहते लोगों को आप कह रहे हो फौज पे हमला कोर कर दिया। कमांडर के घर यार, पे बात करते हमला हैं आप किया, लोग कैसी? वहां से उसके घर पे हमला किया, ठीक आग है। लगा दी। अच्छा, कोर कमांडर के घर की हिफाजत वाले सारे गार्ड कहाँ पे गए थे? 20-25 लोग अंदर जाके शीशा तोड़ देते। जिसका ये- आप पे तो कि हमला कर दिया। मतलब ये कि जायज हो गया, समझ लो नहीं, हमला किसे करा। जायज हो गया? जिन्होंने शीशा तोड़ा उसको पकड़ा जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो मगर वो फिर जिन्होंने सब- सिक्योरिटी ये हटाई तो- कोर कमांडर ये की तो जान लेने जाहिर के साहब, लिए, ये तो उनके करते उसका हैं, कौन ये तो जिम्मेदार है? पीटीआई के लोग पकड़े ये गए, तो, पीटीआई के लोग इन्वॉल्व थे 9 हर मई पार्टी कह रही है। पूरे मुल्क का एकदम पकड़े एहतराम जाते हैं पेश वो किया। जो रंगे हाथों हम इसके होते हैं। सख्त खिलाफ हैं। वो रंगे हाथों वाले तो आप लोग भाग में सख्त अल्फाज में मजम्मत करते पकड़े हैं। हो जाते हैं, जो रंगे हाथों वाले तो आप गायब हो गए। 9 मई के वाक़े से अपना लोगों को पकड़ा जा रहा है। आज आइन है कहाँ हमारे मुल्क 9 में? मई के वाक़े से पता चलता है कि पीटीआई मुल्क दुश्मन पार्टी है। इस मुल्क में कहाँ पर आइन है? पुरअमन रैली निकालने जाते हैं, अब रैली नहीं निकालने दी जाती, पुरअमन मुजाहरा होता है, पुरअमन मुजाहरा उन्हें पता कि हमला कर देंगे। कराची में क्या इन्होंने आवाज उठाई? तंसीबात पे हमला कर देंगे। चंद दिन पहले जो एक पुरअमन मुजाहरा था उसके अंदर उन्होंने कितने सैकड़ों लोग इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। आप बताएं कि इन्होंने आवाज उठाई कि शहर के अंदर के लाखों नहीं असल में इसलिए करते हैं ना कि फिर तंसीबात पे हमला करेंगे, जलाओ घिराव करेंगे। भाई किसी ने हथियार नहीं उठाया, बोरी बंद लाशें नहीं दिया किसी ने बोरी बंद लाशें नहीं दिया, किसी ने हथियार नहीं उठाया। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि टीवी VCR बेचो, असला खरीदो। जो है लोग मर रहे हैं। देखिए जी, मैंने आपसे एक जुमला कहा, मौत बारक है, लेकिन अगर हुकूमतें वजीर आला वजीर आजम अगर इसमें कोताही बरतता है। मौलाना फजलुल रहमान साहब ने, राना साहब इसका जवाब दे मुझे। बच्चे मर जाते हैं, ये भी कुदरत का कसूर है। घर में पानी दस्तयाब नहीं होता, ये भी कुदरत का कसूर है। सलीम साहब, 15 साल से केफ और मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, ये भी कुदरत का कसूर है। सारे कसूर तो कुदरत के। हम लोग तो बहुत मासूम है बेटे, अल्लाह को दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मियां सब स्टेज पे खड़े होके बजट है, तनकीद के अलावा दूसरा काम नहीं किया उन्होंने। मैं तो बात करना नहीं चाह रहा, आप जो है ज्यादा उछल रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ उन्होंने तो स्टेज पे खड़े होकर एक दूसरे को गालियां, सियासत के अंदर गालियां सिखाई है। उन्होंने तो पाकिस्तान को जो तबाह किया है ये इमरान खान ने किया, इन लोगों ने किया। पाकिस्तान की रेडियो सालमियत पे हमला किया इन लोगों ने। मैं तो बात करना नहीं चाह रहा, ये लोग तो मुंह दिखाने का लायक नहीं है पाकिस्तान में। आज ये बात करते हैं स्पीच की, तो देखे ना ऐसी बात नहीं होती। जायज भाई, आप जो बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तो वो काम किए, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला कर दिया आप लोगों ने, पाकिस्तान में पीटीआई पे हमला किया आपने। आप बात करते हैं कौन सी खिदमत की है आपने पाकिस्तान की? आपने पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा किया है, आपने करप्शन किए, इतनी करप्शन की, रिकॉर्ड तोड़ करप्शन किया आपने। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या सिर्फ आपके पास राना साहब, आप देखिए कोई सहूलियात मौजूद है, इससे सूबे में कचरे उठाने का इंतजाम मौजूद नहीं है सूबे में। आप दोनों के माइक बंद हैं। आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है, आपके माइक बंद हैं, आपके माइक बंद हैं। आप दोनों के माइक, जाहिद साहब आप बताएं, दोनों के माइक तो बंद है। आप मुझे बताइए ये क्या मतलब कह रहे हैं ना? नहीं, राना साहब ने बड़ी सूबे की बेहतरी के लिए काम है, बात तो सिर्फ राना साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात करी थी। आप ये बताएं आपने शहर के लिए क्या किया है? हाँ, आप ये बताएं ना सर, फालतू बातों में क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? आप बताएं आपने शहर के लिए क्या किया है? सर आप बता दें, चले आप सलीम साहब आप मौका देंगे तो वो बताएंगे। बोले ना। अच्छा अब आप चुप रहे, मैं चुप रहे, आप चुप रहे। 16 डेमो के ऊपर तामीर शुरू हुई पीटीआई के दौर ठीक में, है, और इन्होंने तामीर न सिर्फ रोकी है बल्कि एक डेमो और बेचने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो 35 अरब डॉलर तक हमारी एक्सपोर्ट पहुंच गई थी। यूनिवर्सिटियां वहां पे खुल रही थी, सेहत के इदारे खुल रहे थे, लोगों को सेहत कार्ड मिल रहा था, एजुकेशन कार्ड जारी होने वाला था, एहसास प्रोग्राम था। इसके अलावा होम स्कीम थी जिससे लोग आसान किस्तों पे बिल्कुल मामूली इंटरेस्ट के ऊपर लोने ले रहे थे और कर चुका था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर दिए गए थे जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, और जब गई है पीटीआई तो उन्होंने 18 अरब डॉलर खजाने में छोड़ के गई है। $129 बैरल के ऊपर में
ٹھیک۔ ₹148 میں لوگوں کو پیٹرول ٹھیک ہے، دیا، آپ کی آج لسٹ $70 کا ہے، آپ کی لسٹ اور جو ہے لمبی وہ 300 کے ٹھیک ہے، قریب بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کے